very good uh, as far as audit is concerned, from the student's life to members' life. We have been listening Aseem Trivedi on any topic related to audit. So North West Studies CP Study Circle is one of the CP Study Circle from Jaipur, doing regularly good programs for the benefit of the members, for the updation of the knowledge of the members. We have done many 6 hours full day programs also on bank audit and other audits. And today, uh, as the time demands, we do a program as per the topic. So today we have with us Aseem Trivedi sir and our mentor, C. Rohit Ruvatia ji, council member. And I would like that Aseem sir will speak on this particular topic, audit trail, myths and facts, and all the doubts will be solved. So back to Rohit. Thank you. Thank you, Shishirji. Now, before inviting our speaker for his deliberation, I would like to share his brief profile with you all. CA Aseem Trivedi ji is a fellow member of ICI. He is especially known in country for his weekly column Jama Punji in Hindi National Daily Newspaper Patrika. He is the author of book on Karo 2020 for CAs and also wrote many books for CA students also. He is a nationwide known faculty for corporate and allied laws, auditing, India's IFRS and business laws. He had delivered more than 1200 seminars on ICA platform. This is just an introduction because profile agar padhe to आधा घंटा लग जाएगा. So without wasting much time, one more thing I would like to tell to the participants: there's if any query, you just put in the chat box. We will take all the queries at the end of the session. So now I'd like to request C. Aseem Trivedi ji for his words of wisdom. Over to sir. Thank you, sir. Thank you, Rohit bhai, Shishir ji, and most energetic and young and dynamic Central Council member to whom I love most. The way he puts his all issues before council, even before all members, and very clearly. And as I am straightforward, I love the person who are straightforward. So I love Rohit Ruvati always for his all thought-provoking things which he put before member, before council, before CIRC, without a single filter. That is his beauty, and I love him for this straightforwardness of his. And I believe that this should be, and as someone said me in Indore itself, sir, you are saying that Rohit is so straightforward. Once we go in council, now you will see that he will become the same. I said him, I bet you for that. He will not going to be changed. He will be same as he is. So we love you, Rohit bhai, for that, and we wish that you could put all these things boldly with the as you are in the council itself to think upon the matters which are today's, which may come out of today's deliberations also. So let us start. Bhupen Mantri ji is here. Before him speaking is very different and very difficult because he is one of my I must say I have shared Bhupen with Bhupen ji. I have shared so many seminars, and I'm having so many friends of mine and old students of mine. Thank you everyone for joining and giving me such kind of honor. Let's have this seminar a fruitful one. And I will definitely say that put your queries immediately when I'm talking, क्योंकि वो आखिरी में फिर बहुत ज़्यादा हैसल हो जाता है. तो आपकी जो भी queries है आप तुरंत चैट बॉक्स में डाल दीजिए. I will answer that. No problem at all. So let's start. Let me share the screen. So let's start with this topic, audit trail. Audit trail
as this seminar has been first launched in Indore branch, that's why it is Indore branch. But I must say it is copyright of that branch which which started first. So this is my 9th or 10th talk on this particular audit trail. Audit trail is most burning topic right now. So let's have this topic. Let's start with this topic. सी ऑडिट ट्रेल आया है, उसके बाद से बहुत सारे मिथ जो हैं वो देखा जाए तो पूरे इंडिया में और हमारी सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी में तो रोज किसी ना किसी ग्रुप में कुछ ना कुछ जो है इसके ऊपर आपको मिलेगा. बट लेट अस कंसीडर इट दैट व्हाट एग्जैक्टली दिस ऑडिट ट्रेल इज. सबसे पहली बात, मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बता पाऊंगा जिससे आप इस ट्रेल से बच जाएं, क्योंकि इससे बचने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ. लेट मी टेल यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर टू एवरीवन, you cannot put your words in my mouth by putting any queries on chat box itself, because it is not possible. And ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि ये डमरू गलत आदमी ने बजा दिया. मतलब मेरा ख्याल है ये ऑडिट ट्रेल वाला डमरू अगर सीबीडीटी बजाते या जीएसटी काउंसिल बजाती तो समझ में आता. ये डमरू बजा दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ. एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो ये चालू कर दिया, तो अब ये लाए तो 2 साल पहले थे, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया उतना. लेकिन उसके बाद जब डेफर हुआ तो भी उतना ध्यान नहीं गया. लेकिन जब लग के आ गया तो अब हमको समझ में आया कि यार ये तो लगी है, इसका तो कैसे आ गया. मतलब दैट वाज. पहले बात तो क्या होता है कि जैसे हम इंडियंस हैं, कोई भी चीज आती है ना, तो कोरोना भी आया था तो हमने पहली बार में तो ये बोला था कुछ नहीं है, सर्दी खांसी छोड़ो. पहली लहर आके चली गई तो भी हमने कहा कोई बात नहीं, जिनकी इम्यूनिटी खराब है वो गए. दूसरी लहर में जब वो बहुत ज्यादा आया तब हमको लगा कि नहीं यार ये कुछ है. तो ये इट्स अवर मेंटेलिटी कि पहले तो हम चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते. जैसे ऑडिट ट्रेल आया तो लोगों ने पहले अप्रैल से लागू हुआ और लोगों ने कहना चालू कर दिया कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, छोड़ छोड़ छोड़. फिर 5 दिन बाद किसी ने लिखा भाई साहब डिफॉल्ट चालू हो चुका है, तो लोगों ने बोला कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं. फिर एक बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आया कि साहब इसको अगर मेंटेन नहीं किया गया तो सेक्शन 128 की पेनल्टी लग जाएगी 50,000 5 लाख की. तब कुछ लोग सीरियस हुए कि अरे यार ये 150,000 5 लाख की पेनल्टी लग जाएगी, ऐसा कुछ लग रहा है. हाँ मुझे लग रहा है. फिर अकाउंटेंट आए नहीं 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 वो तो क्या है छोटी कंपनियों को तो भारी कर देंगे, अभी रुको आप, एक आने वाला है, अभी इतने दिन हो गए कुछ भी नहीं आया. और ना किसी ने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया, ना कोई फिक्की गया वहां पे, ना कोई एसोकेम गया, ना कोई स्मॉल एमएसएमई की तरफ से कोई गया ही नहीं वहां पे. या तो उन्हें नॉलेज नहीं है या उनको मालूम है कि ये तो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही देखना है तो हमको ही देखना है. तो इन ऑल nobody gone for any sort of representation and nothing is going on. This clause has been applied from 1st April 2023. It is applied to all companies, OPC हो, dormant हो, गवर्नमेंट हो, सेक्शन 8 हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, फॉरेन कंपनी हो तो भी लगेगा. सो इट इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी, नो चांस एट ऑल. So this is very, very clear that this clause is applicable to every company. So my first take is this is applicable to every company. Now you can tell me that every company कैसे बोल रहे हो आप. हमने तो सुना है कि जो कंपनियां मैनुअल अकाउंटिंग करेंगी उनको ये एप्लीकेबल नहीं. आपने बिल्कुल सही सुना है. मैनुअल अकाउंटिंग का कौन रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट. और मैनुअल अकाउंटिंग कितने दिन तक करेंगे और किस मैग्नीट्यूड पे करेंगे, दैट इज अनदर पॉइंट. मैनुअल पे करवा देंगे. सर अपना कहना कि मैनुअल पे करवा देंगे इतना इजी नहीं है. किसी बंदे को कंप्यूटर से मैनुअल पे आना इज नॉट इजी.
मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा, आपको उसके नंबर ऑफ ऑपरेशंस देखना पड़ेंगे। तो आप भूल जाइए, छोटी मोटी कंपनी है, 10-12 ट्रांजेक्शन होते हैं, 15-20 एंट्रियां होती हैं बैंक स्टेटमेंट में, महीने भर की 12-15 एंट्रियां होती है। आप करिए ना, क्यों नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप मैनुअल पे चली जाइए, मैनुअल पे चले जाएंगे तो ये सारा लफड़ेगा समझे। पर ऐसे बहुत से क्लाइंट होते हैं जो मैनुअल पे आते हैं। प्राइवेट कंपनी तो बनाते ही तब है जब उनका टर्नओवर एक कंसिडरेबल लिमिट तक पहुंच जाता है। छोटी मोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने ऐसी शॉप के लिए बना ली हो तो बात अलग है, लेकिन अब अगर हम बात करें कि ओपीसी हो, स्मॉल कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, तो सभी पे लगना है, irrespective of turnover, irrespective of capital, irrespective of anything. So it is applicable to every company who is maintaining their accounting records on software. Now important is, let me read this first paragraph, what it says there. Provided that for the financial year commencing on or after 1st day of April 23, every company that I have mentioned, which every company, including foreign company, because foreign company, section 2, subsection 42, foreign company very clearly demonstrate, and that chapter related to foreign company clearly demonstrate that whatever applicable accounting and auditing norms applicable to normal company will be mutatis mutandis applicable to foreign company also. So beware of those foreign companies who have incorporated a place of business in India. जिसने प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया है उसके ऊपर ये प्रोविजन इट इज लग रहा है, दैट इज देयर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. Uses accounting software for maintaining its books of accounts. So first of all, what is accounting software? Second, what is books of accounts? I'll come to that. But using accounting software for maintaining its books of accounts can use only such accounting software. This word only is very important. Can use only such accounting software which has a feature of recording audit trail of each and every transaction. Now they are saying that each and every transaction feature of recording audit trail of each and every transaction, not only audit trail, there must be edit log of each change made in the books of accounts. Once you wrote the books of accounts, and if you are changing there anything, there must be an edit log of each change made. So one is known as each and every transaction, an audit trail, and the second one, once you recorded account, after that, if you are changing something in those accounts, there must be an edit log along with the date when such changes were made. It would have a timestamp. आपने कब इसको change किया, when you have changed it. So it is very, very clear that they want to say and they want to communicate, yes, these are the dates when such changes have been made. And the third one, company should ensure that audit trail has been enabled throughout the year. It had been enabled throughout the year. That is most important. It had enabled throughout the year. That is another important. So it is from the point of view of company, not from the point of view of audit. This is from the point of view of company and not from the point of view of audit. So this is from the point of view of company and not from the point of view of auditor. ये कंपनी को करना है सर, वही तो दिक्कत है. कंपनी को करना है मतलब अपने को करना है सर, ये सब कंपनी को करना है. ये कंपनी नहीं कर रही थी इसीलिए हमारे ऊपर आया है. अगर ये कंपनी कर रही होती तो हमारे ऊपर नहीं आता. और गवर्नमेंट को जब ईडी की इतनी रेड्स पड़ी और उन्होंने जब हार्ड डिस्क
और डेटा जो उन्होंने कलेक्ट किया था रेड्स में, सर्च में, सर्वे में, ईडी के प्रोसीडिंग्स में, तब उनको ये समझ में आया कि यार बैलेंस शीट 31 मार्च को तो बनती नहीं, बैलेंस शीट डेट 31 मार्च होती है और बैलेंस शीट बनती है अगस्त में, सितंबर में, लास्ट डेट पर। और आजकल ईडी ने एक नया काम चालू किया है, वो क्लाइंट के यहाँ से तो रिकॉर्ड लेके जाते ही हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के हार्ड डिस्क भी लेके जाते हैं। और जब उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के हार्ड डिस्क को खंगाला तो उनको पता चला कि एक कंपनी के फोल्डर में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं उसमें दिख रहा है क्वार्टर फाइनल, सेमी फाइनल एंड फाइनल बैलेंस शीट। और क्वार्टर फाइनल बैलेंस शीट अलग है, सेमी फाइनल थोड़ी सी और रिफाइंड है, फाइनल पूरी ही रिफाइंड है। और जब उन्होंने देखा कि बॉस एक एक्सेल शीट और मिल रही है कि सेमीफाइनल और फाइनल के बीच में जो कंपैरिजन की बैलेंस शीट बनाई है वो भी मिल रही है कि कैसे 12 महीने की सैलरी कैश में डल रही है या कैसे 12 महीने की सैलरी का प्रोविजन मिल रहा है और वो बाद में वो प्रोविजन हो रहा है। तो गवर्नमेंट को लगा कि अगर अकाउंटिंग ऐसे होती है तो फिर ऑडिटिंग कैसे होती है, तो फिर उनको लगा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। एंड मान के चलिए पूरे वर्ल्ड में अगर हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने वैक्सीनेशन में नाम कमाया है, तो दूसरा मौका आपके पास फिर है भारत को पीठ थपथपाने का कि पूरे वर्ल्ड में ऑडिट ट्रेल इस पैमाने पे वर्ल्ड में कहीं भी लागू नहीं है। एंड दैट इज बीइंग वन ऑफ द प्रोडक्ट which can demonstrate to the G20 nations and which can demonstrate to the world that what is known as corporate governance. That's why I'm saying it's a leading thing which is going to make the India distinctive in as compared to the world accounting. एंड जब वर्ल्ड अकाउंटिंग में एक डिस्टिंक्टिव स्टेप ले ली जाती है ना तो वो स्टेप बैक नहीं होती है। इसलिए किसी भी तरीके की आशा छोड़ दीजिए कि इनको कहीं कोई रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि हम वर्ल्ड में अब ये ढिंडोरा पीट चुके हैं कि हम अकाउंटिंग नेशंस में, जितने अकाउंटिंग नेशंस हैं जो आईफैक के मेंबर्स हैं, उनमें सबसे पहले अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अकाउंटिंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आया है तो वो इंडिया लेके आया है। तो अब ये आप बिल्कुल ही हमारे लिए तो सीना चौड़ा करके घूमने वाली बात हो गई। तो अब ये कोई वापस वापस होना नहीं है, चाहे आप कितने रिप्रेजेंटेशन दे दें, चाहे कुछ भी दे दें। सॉलिडेरिटी ऑफ द गवर्नमेंट वी ऑल नो, इन ऑल फ्रंट्स वी हैव ऑल विटनेस्ड। So I don't think there is going to be any kind of step back in this particular point. So it is applicable. It is applicable forever. If somebody says that नहीं है वापस आ जाएगा करवा देंगे, फालतू नेतागिरी की बात है, कुछ वापस नहीं आने वाला। दिस इज बी देयर। सो नाउ द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव an accounting software. If you are doing accounting with software, you should have each and every transaction should be recorded in audit trail. And if there is any sort of changes made in books of accounts, it has to be have to have an editor log, and the trail cannot be disturbed. Now, the first question in chat box which came to me, and that was, sir, द फर्स्ट क्वेरी आई एम टेकिंग, यहां तक जो हुआ मैं उसकी क्वेरी ले रहा हूं। पहली क्वेरी आई है कि व्हाट इफ कंपनी हैज मैनुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सर अगर आपकी मैनुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है तो आप यहाँ से बाहर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैनुअल में आप मेंटेन कर सकते, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और मैनुअल में अगर हैं तो आप यहाँ से बाहर हैं, लेकिन मैनुअल एक हद तक ही जा पाएगा क्योंकि उसके बाद तो सॉफ्टवेयर आएंगे। आप मैनुअल मतलब कैसे, आप खुद ही सोचिए ना निखिल भाई, कि अगर एक कंपनी ई वे बिल बना रही है कंप्यूटर से, बिलिंग कर रही है कंप्यूटर से, आरओसी के सारे फॉर्म भर रही है कंप्यूटर से, और अपने टैक्सेशन अपलोड कर रही है कंप्यूटर से, और सारे काम वो कंप्यूटर से कर रही है, सिर्फ एक काम उसको कंप्यूटर से नहीं करना है, दैट इज व्हाट काउंटिंग। तो जस्टिफिकेशन कहीं ना कहीं तो मांगा जाएगा। हाँ ये ठीक है, छोटी कंपनी है, बहुत कम ट्रांजेक्शन है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, जाए तो कोई दिक्कत नहीं।
whether the company required audit trail in billing software. Yeah, I'll come to that point also. मैं उसको ध्यान में रखूंगा. What would happen if we implemented it from 15/4/2023? Very good. So let me tell you what is going to happen. देखिए कि डिफॉल्ट हो गया. 1 अप्रैल से डिफॉल्ट शुरू हो चुका है. जितनी देर करेंगे डिफॉल्ट उतना लेट होगा. डिफॉल्ट होने पर अब कंपनी तो आरओसी की मर्जी पर है. आरओसी को कैसे पता चलेगा कि इन्होंने ऑडिट ट्रेल लेट लगाया? क्योंकि हम अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे. हम अपनी रिपोर्ट में क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारे लिए रिपोर्ट 1423 से मैंडेटरी है. स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट देना है और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में मुझे देना पड़ेगा कि 15 दिन कंपनी का सॉफ्टवेयर एडिट लॉग और ऑडिट ट्रेल नहीं रखता था, 30 दिन नहीं रखता था. आज से किसी ने इंप्लीमेंट किया तो आज तक का आएगा. स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट तो हर रिपोर्ट में जाएगा और वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जब हर रिपोर्ट में जाएगा तो उनके पास ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं. उन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप डेटा एनालिटिक्स करते हैं और डेटा एनालिटिक्स करके वो जैसे बल्क में पॉलिटिकल पार्टी के नोटिस जाते हैं, बल्क में पॉलिटिकल डोनेशन के नोटिस जाते हैं, अब बल्क में ये वाले नोटिस आएंगे कि साहब ऑडिट ट्रेल मेंटेन नहीं है, सेक्शन 128 की पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए. अब वो उनकी मर्जी पे कि वो शुरू के अंदर छोटी मोटी पेनल्टी लगाते हैं, नोटिस देके छोड़ देते हैं, रिप्रिमांड कर देते हैं. दैट ऑल प्रोसिक्यूशन नहीं है. ये अच्छी बात है. 128 में अमेंडमेंट लाए थे, प्रोसिक्यूशन को बाहर कर दिया गया, तो कम से कम प्रोसिक्यूशन नहीं है इस बात का. ठीक है, बट इट्स ऑल ऑन मर्सी ऑफ आरओसी. डिफॉल्ट हो चुका. अब बात आ रही है कि डिफॉल्ट हो चुका तो थोड़ा और ही जाने देते. कुछ लोग बोल रहे हैं मेरे को, अरे अब डिफॉल्ट हो ही गया तो हो ही जाने दो सर, 2-1 महीने और डिफॉल्ट चलने देते हैं, तब तक ये पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट निपटा लेते हैं. नहीं तो पता चला तुमने ऑडिट ट्रेल लगवा दी और हम इस साल की बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हैं, वो अलग ऑडिट ट्रेल में आ गई. बात तो आपकी सही है, आएगी तो वो भी ऑडिट ट्रेल में. खतरनाक बात है. अभी तो बहुत सारी खतरनाक बात है, इसीलिए मैंने शुरू में ही डिस्क्लेमर दे दिया था कि ये एक स्केरी मूवी है और आप मुझसे बिल्कुल इसमें ना पूछे कि इससे बचने का तरीका क्या है, क्योंकि वी आर इन ट्रैप. अब हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे. नाउ द प्रॉब्लम इज, इसको कहेंगे कि अच्छा 1 मिनट पहले ऑडिट ट्रेल की 3 खूबियां बता दूं, उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ता हूं. ये 3 खूबियां आप ऑडिट ट्रेल के लिए लीजिए. ऑडिट ट्रेल में इंक्लूड फॉलोइंग: व्हेन द चेंजेस वर मेड, ओके, who made the change, okay, and what data was changed. The edit log should contain these 3 things: when the changes were made, who made the changes, and what data was changed. अब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर. जितनी कंपनियां टैली पर अकाउंटिंग कर रही, छोटी कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, बड़ी की जो अमूमन हमारे ऑफिस में है. अब अगर आप उन छोटी कंपनियों को ले लें और उन छोटी कंपनियों को क्या अकाउंटेंट को बुलाएं और पूछें कि जरा तेरे टैली खोल, जरा तेरे लैपटॉप में. आप उससे टैली खुलवाइएगा लैपटॉप में, उसके बाद उससे बोलो कि तूने कितने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथराइजेशन कर रखे. वो बोलेगा ये क्या होता है. हम बोलेंगे क्या होता है का मतलब, बस सर मैं टैली खोलता हूं, मैं ही एडमिनिस्ट्रेटर हूं, आई एम दी ओनली यूजर, मेरा अपना लॉगिन है, मैं अपने लॉगिन से एंटर करता हूं. और कितने लॉगिन है, वो बोलेगा सर मेरा तो एक ही लॉगिन है. बॉस अब गड़बड़ है. अगर उसका एक ही लॉगिन है, इसका मतलब है ऑडिट ट्रेल इनेबल करने और डिसेबल करने के पावर भी उसी के पास. और अगर ऑडिट ट्रेल इनेबल करने और डिसेबल करने के पावर उसके पास है, तो हम कैसे इंश्योर करेंगे कि ऑडिट ट्रेल के ऊपर जो इनेबल डिसेबल करने के पावर जो थे उसमें इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर था. तो सर सबसे पहले तो सारे अकाउंटेंट्स को बोलना है कि भैया तेरे ऊपर एक पावर बनवा और जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, उनमें से किसी एक को पावर होना चाहिए कि ऑडिट ट्रेल इनेबल या डिसेबल हो जाए, क्योंकि एक भी दिन गलती से भी इनेबल या डिसेबल कर दी ऑडिट ट्रेल, मेरे ऑडिट रिपोर्ट में आएगा कि कितनी बार ऑडिट ट्रेल इनेबल हुई और कितनी बार ऑडिट ट्रेल डिसेबल हुई, क्योंकि मुझे तेरी ऑडिट ट्रेल का ऑडिट करना है, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का तो ऑडिट करना ही करना है, मुझे तेरी ऑडिट ट्रेल का भी ऑडिट करना है, तो उसमें आएगा डिसेबल इनेबल डिसेबल इनेबल, तो कितनी बार डिसेबल इनेबल हुआ वो मुझे वहां लिखना पड़ेगा, और इनेबल डिसेबल होना अपने आप में फ्रॉड रिस्क फैक्टर होगा, जिसके कारण मुझे ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपने सारी कंपनी के अकाउंटेंट को बोला जाए कि बॉस, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अलग रखो, लॉगिन पावर अलग रखो, एडिट पावर अलग हो, जो एंट्री कर रहा है उसके पास एडिट पावर नहीं चाहिए, एडिट लॉग अलग हो, ताकि वहां दिखे कि कब चेंज किया, किसने चेंज किया और कौन सा डेटा चेंज किया। पता चला राम विलास सारा ही एंट्री कर रहा है, राम विलास ही एंट्री कर रहा है, राम विलास ही एडिट कर रहा है, राम विलास ही ऑडिट ट्रेल ऑन करने की पावर भी रखता है, राम विलास ही एडिट पावर करने का, सारे राइट्स अगर एक ही बंदे के पास है तो फिर इंटरनल कंट्रोल ऑन अकाउंटिंग है ही नहीं। तो हम बोलेंगे कैसे कि इंटरनल कंट्रोल क्या है, क्योंकि ये तो आएगा व्हेन द चेंजेस वर मेड, हु इज मेकिंग द चेंजेस एंड व्हाट डेटा आर चेंज्ड। तो ये तीनों चीजें ऑडिट ट्रेल में मेंटेन होना जरूरी है। इसकी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी मैंने आपको बताई, हमको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देना ही पड़ेंगे, नो पॉइंट एट ऑल। वन गुड क्वेश्चन केम फ्रॉम अनुराग भाई. Anurag Tutuka is asking, what if we have received invoice late and entered is end and when received, mainly entered after 10 or 15 days of some expense? See, delayed accounting is not at all a problem. इसलिए ये थोड़ी कहा है कि डिलेड अकाउंटिंग गुनाह है ही नहीं। कौन कह रहा है आपसे कि डिलेड अकाउंटिंग नहीं कर सकते? बिल्कुल अकाउंटिंग कर सकते हो आप, डिलेड अकाउंटिंग कर सकते हो, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे डिलेड अकाउंटिंग नहीं कर सकते। अभी कुछ सेमिनार्स में बात उठी थी, साहब हमारे अकाउंटेंट मंथ में एक बार आता है। तो भाई अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि मंथ में एक बार आता है तो बहुत अच्छी बात है। आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लेस है, मंथ में एक बार आता है, कोई दिक्कत नहीं, मंथ में एक बार कर जाए मंथ की एंट्री। सर 2 मंथ में एक बार, 2 मंथ में एक बार कर जाए, तो 3 महीने में, आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है सर कि 2 महीने में आता है कि 3 महीने में। सर साल में एक बार आता है, सर इतनी छोटी कंपनी है कि साल में एक बार अकाउंटिंग करनी है, तो साल में एक बार अकाउंटिंग करने के लिए बुला दीजिए, वो तो नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करेगा। आपके ट्रांजेक्शन है ढेरों और आप बोल रहे हो कि मैं मंथली अकाउंटिंग करवाऊंगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वो तो इंटरनल कंट्रोल के अगेंस्ट हो गया इरेगुलर अकाउंटिंग। क्यों मैं बोलूं फिर इंटरनल कंट्रोल के अंदर दैट इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज प्रॉपर, कैसे बोलूं मैं? और लिस्टेड कंपनीज के केस में तो कुछ बोल ही नहीं सकते हो आप डिलेड अकाउंटिंग के बारे में, क्योंकि वहां तो पार्ट ए में रिपोर्ट दे रहे अपन इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, और इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम बोल रहे हैं दैट इंटरनल कंट्रोल इज एब्सोल्युटली ओके रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ऊपर से 134 सबसेक्शन 5 के अंदर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट पकड़ा रहा है कि साहब इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज एब्सोल्युटली appropriate. जब internal control over accounting policies, accounting is absolutely okay, then why this delayed accounting is observing by auditor? Regular delayed accounting not at all acceptable, but yeah, if interval accounting is there or delayed accounting due to this genuine reason, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने कोई रॉन्ग इनवॉइस डाल दी है और आप वापस से उसको कैंसिल करके नई इनवॉइस डालना चाहते हो, आप बिल्कुल डालो, और दोनों ही आपके अंदर आएंगी, ऑडिट लॉग में आ जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऑडिटर सपोर्टिंग मांगेगा, बता दीजिएगा कि ये इनवॉइस थी, इसको कैंसिल कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन राहुल अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, वेदर फाइनेंशियल ईयर 22-23 की क्लोजिंग बैलेंसेस जो फाइनल नहीं है बिकॉज ऑफ द एरर रेक्टिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, टीडीएस बैलेंसेस और इनकम टैक्स जनरली गेट्स दैट, will it impact the audit trail is what would take?
here as an auditor. देखिए साहब, हर जेन्युइन गलती के लिए आप एडिट लॉग बिल्कुल रखें, आप एडिट कीजिए, गलतियां सुधारिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस गलतियों का मैग्नीट्यूड इतना ना हो कि इंटरनल कंट्रोल को ही हैम्पर कर। अब मुझे आप बताइए कि 31 मार्च के बाद अगर कैश की एंट्रीज डल रही, और कैश की एंट्रीज इसलिए डल रही हैं क्योंकि देयर आर मेनी नेगेटिव बैलेंसेस इन टैली, तो सर अब वो तो प्योरली वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल हो गया ना। टैली में आप एंट्री डालोगे और आप एंट्री डाल रहे हो नेगेटिव बैलेंसेस की, और नेगेटिव बैलेंसेस को पॉजिटिव करने के लिए आप जितनी भी एंट्रीज डाल रहे हो आप डालो। हाँ, अगर आप ये प्रूव करते हो कि टैली के अंदर वो भाई ने एक्सपेंसेस पहले डाल दिए, इनकम बाद में डाली, इसके कारण नेगेटिव आया, तो ठीक है ना, ठीक कर दो ना। ऑडिटर ऑडिटर पूछेगा, आप ऑडिटर को बता दीजिए, ऑडिटर समझ जाएगा। ऑडिटर को कोई ऑप्शन लेना थोड़ी होता है। 31/3/2023 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप क्लोजिंग स्टॉक का सर्टेनमेंट 24 अप्रैल को करो, 24 मई को करो, 24 जून को करो, कौन दिक्कत दे रहा है। आपकी क्लोजिंग एंट्री आप पास करो ना जून में, कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको कि आपको क्लोजिंग एंट्री 31 मार्च को ही करनी। विवेक भाई, अगर आपको एंट्री करनी है 31/3/2023 के क्लोजिंग स्टॉक की, तो आप कीजिए, आप जून में कीजिए उसकी एंट्री। क्लोजिंग एंट्री तो लेट ही होती है, उसमें थोड़ी कोई बोल रहा है कि आप क्यों लेट कर रहे हो। एंट्री एंट्री तो लेट हो, कोई दिक्कत ही नहीं। क्लोजिंग एंट्रीज, मैं तो कैश एंट्रीज का प्रॉब्लम है। 31 मार्च के बाद कैश एंट्रीज पिछले साल की वो तो डल ही नहीं सकती, अनलेस एंड अनटिल ये ना प्रूव हो जाए कि कैश मिसमैनेज था। और कैश मिसमैनेज अगर हुआ तो दैट वुड बी अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर, माइंडेड वेरी क्लियरली, दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। नाउ अब इन क्वेरीज को लेने के बाद, जब तक थोड़ी क्वेरीज और इकट्ठी हो जाए, मैं थोड़ा और आपको आगे बढ़ा दूं। नाउ क्या करोगे भैया अगर नहीं मेंटेन किया तो? मैनेजिंग डायरेक्टर 1, फुल टाइम डायरेक्टर 2, इंचार्ज ऑफ फाइनेंस 3, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर 4, कोई भी बंदा जो कंपनी ने चार्ज कर रखा है बोर्ड की तरफ से कि कंप्लाई करो इन प्रोविजंस को 5। तो मैनेजमेंट, those charged with governance, full-time director, CFO, other person of the company shall be punishable with a fine which shall be not less than 50,000 rupees, but which may be extended to 5 lakhs. That is the whole thing, which is the game plan. Now some FAQs. But FAQs पे जाने से पहले, let's come to what do you mean by books of accounts. Section 2, subsection 13 clearly mentions that books of accounts include records maintained in respect of पहला, all sums of money received and expended by the company in the matter in relation to which the receipts and expenditure took place. That means clearly cash book and bank book will all cover here. Sales and purchase of goods, so sales journal, purchase journal, sales register, purchase register, they all will be covered. Assets and liabilities of the company, everything in form of ledger, it will be covered. अब कुछ लोगों की बात आई, बोले सर स्टॉक रजिस्टर जो है वो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज बुक्स ऑफ अकाउंट, कोई बोल रहा है फिक्स्ड एसेट रजिस्टर विल नॉट बी ट्रीटेड एज बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मेरा कहना है अगर एसेट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं तो दे आर विद इन द डेफिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑल रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू एसेट्स विल कम हियर। इवन सेक्शन 148 के कॉस्ट रिकॉर्ड वाले भी यहां से कवर होंगे ही। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल कवर एवरीथिंग एक्सेप्ट मिनट बुक्स हैं, कंपनीज के रजिस्टर हैं, कंपनी रूल्स के अंदर जो रजिस्टर मेंटेन करने हैं, डायरेक्टर्स रजिस्टर है, उनको आप छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी तो एवरीथिंग इज विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड इफ वी आर मेंटेनिंग दीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दैट सॉफ्टवेयर मस्ट कंटेन edit log that is required and audit trail. So now the
Can we keep sales invoice manually and enter in daily after 4-5 days? See, memoranda account बनाना कहीं कोई गलत नहीं है. पेटी कैश बुक आप बना रहे हो, कोई गलत नहीं है. आप मेमोरेंडा अकाउंट बनाओ ना, कौन बनाता है? लेकिन मेमोरेंडा अकाउंट तब बनाते हैं जब बल्क में कोई ट्रांजेक्शन हो और उनको हम डेली रिकॉर्ड नहीं करना चाहते. हमने मेमोरेंडा अकाउंट में लिख लिए मैन्युअली. आप मैन्युअली मेमोरेंडा अकाउंट बना लीजिए, उसकी बैच वाइज अकाउंटिंग करवा दीजिए. अब आप अगर मुझे बोलते हैं कि सर मैं सेल्स इनवॉइस प्रिंट कर रहा हूं एंड आई एम प्रिंटिंग थ्रू वन सॉफ्टवेयर and using one software for sales invoice, sales accounting. And from there, the whole Excel sheet is being exported in Tally. No, I will tell you, if anything you are importing in Tally, either from Excel, either from your HR department software, either from any of these software, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको डेटा एक्सपोर्ट करके दे रहा है in the main software, main accounting software. Why I am saying Tally? Because Tally is common software. That's why I'm saying. Other accounting software is also there. So anything which is integrated with your accounting software, which is getting the imported data in form of Excel sheet or anything which is getting imported and then the accounting is done, mind it very carefully. That would also be covered in accounting software because this is the definition of accounting software. हम एक्सेल को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं बोल सकते. हमारे यहाँ तो बहुत बड़े बड़े जादूगर हैं, वो एक्सेल पे अकाउंटिंग बुक रख लेते. हाँ तो रख लेते हूँ. मैं तो ये बोलूंगा कि ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम. दे आर नॉट सेइंग अकाउंटिंग प्रोग्राम, दे आर सेइंग इट इज कंप्यूटर प्रोग्राम or a system. They are not saying that it is accounting system. They are saying it is system that enables recording, maintenance and reporting of books of accounts and relevant ecosystem. This relevant ecosystem will include all your sales, all your salaries, all your related books. The functionality of such accounting software differs from product to product. Every organization today employ multiple software for accounting, its operation and other requirements for collection of data. For the purpose of this implementation guide, only the accounting software which is relevant for maintaining the books of accounts should be considered for enabling the audit trail. So audit trail maintain करने के लिए आपको हर वो सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग के साथ इंटीग्रेटेड है उसको ऑडिट ट्रेल पे लाना पड़ेगा. अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि हमारी एक्सेल शीट बनती है, वो मेमोरेंडा शीट है, हम उसको उसमें उसी में सेल्स तो पूरी उसी में मेंटेन करेंगे, परचेस पूरी उसी में मेंटेन करेंगे, वेजेस पूरी उसी में मेंटेन करेंगे. तो अगर आप सारी चीजें उसी में मेंटेन कर रहे हैं और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके लेकर के आ रहे हैं किसमें, टैली में, तो दे विल फॉर्म द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज दे आर द रेलेवेंट इकोसिस्टम विद व्हिच यू आर अकाउंटिंग इन योर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. So any ecosystem, relevant ecosystem which is part and parcel of your accounting system will come within the purview of accounting system and it should have audit log, it should have an audit trail. And अगर कंपनी की वो चीज ऑडिट ट्रेल पे नहीं है तो मैं एज एन ऑडिटर लिखूंगा कि कंपनी का मेन अकाउंटिंग सिस्टम में ऑडिट ट्रेल फीचर है, लेकिन ऑडिट ट्रेल फीचर अवेलेबल नहीं है कुछ जगहों. और कुछ जगह कौन कौन सी हैं तो वो मुझे लिखनी पड़ेंगी कि जो कैश सेल्स रिकॉर्ड हो रही है या कोई और सेल रिकॉर्ड हो रही है वो मैन्युअली हो रही है, बाकी ट्रेल में हो रहा है. दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ, वो मुझे वहां पे देना पड़ेगा. So that is very important to take care of. Now, Vashuji is asking, Anurag, we have split data and make new entries in edit log for 23-24, but for financial year 22-23 without edit log. देखिए ऐसा है
अगर आपके पास ये सुविधा उपलब्ध है कि आपका एडिट लॉग जो है वो अलग अलग डेटा स्प्लिट के कारण अलग अलग अकाउंटिंग को अलग अलग सपोर्ट करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एडिट लॉग की रिक्वायरमेंट 1/4/2023 के बाद से अप्लाई हुई है आपके ऊपर, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन 1/4/2023 के बाद से जो भी अकाउंटिंग हो रही है, दैट अकाउंटिंग इज सब्जेक्ट टू एडिट लॉग एंड ऑडिट ट्रेल। बट जिन सॉफ्टवेयर में अभी एप्लीकेबल नहीं है, दैट थिंग्स आर नॉट अवेलेबल देयर, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। नाउ, can we create new company in Tally for financial year 23-24? सर ऐसा है, आप 23-24 के लिए नई कंपनी बनाएंगे, नई नई कंपनी क्रिएट करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप डेटा तो पीछे से ही लेके आएंगे ना, उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस तो आपको डालनी पड़ेगी। So you can come with that, no problem. My client dealing in real estate and revenue book accounting to guidance model real estate. Client book revenue only single entry in March, and he has also maintained the billing software. Then it required audit trail in billing software. Sir, let me tell you. Whatever accounting standard you are applying, whether it is accounting standard 7 or whether it is Ind AS R2 or you are applying the guidance note, what is going to happen in our accounting standard 7 and relevant accounting Ind AS, it is clearly mentioned that progressive billing has to be taken care of in the software itself. जो भी आप प्रोग्रेसिव बिलिंग करते हो करते रहो, फाइनल बिलिंग की जो जर्नल एंट्री होगी वो तो ड्यू फॉर कस्टमर और ड्यू टू कस्टमर निकाल के रहेगी। आप अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में भी जाएंगे, इंड एस में भी जाएंगे, तो आपको ये मिलेगा कि आपको जो फाइनल एंट्री डालनी है, उसकी जो फाइनल रेवेन्यू बुक करना हो, जो सिंगल एंट्री आप डालते हो, वो सिंगल एंट्री क्लोज करने के लिए डालते हो। उसमें क्या होता है कि साल भर का आपने रेवेन्यू बुक किया है प्रोग्रेस बिलिंग के थ्रू, और साल भर का रेवेन्यू जब आपने प्रोग्रेस बिलिंग के थ्रू रिकवर पूरा प्रोग्रेस बिलिंग के थ्रू एंटर कर दिया है, उसके बाद आप देखोगे कि आपके परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से रेवेन्यू कितना आना है, और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से जितना रेवेन्यू आना है, अगर आपने रेवेन्यू ज्यादा बुक कर लिया है तो आपको एक जर्नल एंट्री मारनी पड़ेगी, एंड दैट वुड बी रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू ड्यू टू कस्टमर। और अगर आपने रेवेन्यू कम बुक किया, then you have to add one entry due from customer account debit to revenue. So वो आखिरी एंट्री तो आएगी ना, वो तो आएगी अपनी जब भी आएगी 31 मार्च के बाद आएगी, बट रेगुलर बिलिंग जो आपकी आ रही है वो रेगुलर बिलिंग तो आनी ही पड़ेगी, और वो रेगुलर बिलिंग को आपको उसके अंदर डालना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है उस हिसाब से कि आप प्रोग्रेस बिलिंग जो करते जा रहे हो, एडहॉक बिलिंग जो करते जा रहे हो, दैट एडहॉक बिलिंग विल बी देयर इन द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। सो आई डोंट थिंक सो कि उसमें अपन लास्ट एंट्री डालेंगे तो रेवेन्यू की 38 एंट्री डालेंगे। वो पूछ सकते हैं आपसे प्रोग्रेसिव बिलिंग की एंट्री कहाँ है, तो प्रोग्रेसिव बिलिंग की एंट्री जो है वो यहाँ आएंगी। कैन वी एंटर ओपनिंग बैलेंस आफ्टर ऑडिट डन, चेंजेस इन ओपनिंग बैलेंस इज ओके और नॉट? सर जब अगले साल का ऑडिट करूंगा, नेक्स्ट ईयर का, देन नेक्स्ट ईयर ऑडिट आई विल टेक केयर ऑफ, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Next year audit will take care of. Bhupen bhai has asked something. ये जो 22 आया है, yesterday also Sanjeev Singhal ji was there in Indore, and this April 22 they have sent the representation to MC also, and they said that auditor will definitely going to cover this in the next financial year. तो next financial year में ही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट के अंदर ही हमको ये कवर करना है। सो दी टेक्स्ट ऑफ रूल 11G, आई एम कमिंग टू दैट Bhupen bhai, and I'll try to answer this. So both rules are independent to each other. Thus, where the company where already audit trail is maintained, a view is coming that the reporting is required. Though guide clearly says reporting under this clause is not applicable. However, we need to read both the clauses independently. You are right. My opinion was also the same that this came in. ये देखिए ना आप, ये that I have taken. I'll cover that also. Bhupen bhai, I'm coming to that. Let's understand this.
Now the rules you have, rule number 11G of the Companies Act, it clearly mentions that whether the company in respect of financial year commencing on or after 1st April 2022 has used the accounting software for maintaining its books of accounts, which has been, sir, it is that this whole audit trail had been deferred till 2023. When companies were not able companies were not required to have audit trail. So now some views are coming that we have to show that in 2000, 2022-23, as the provision was not applicable and company was not required to have maintained dated log, reporting in this clause is not required. But our guidance not clearly mentions that this provision is going to be applicable from 1/4/2023, because the whole provision has been deferred. It may possible that inadvertently this has been made 22 and this had not been made 23. So let us give a task to Rohit Trivedi to give us more clarity on this because he's the only council member at present here. So Rohit bhai, this has to be taken care of. Okay, abhi the views, both views are there that what to do. But in my view, I think this is an inadvertent problem which required to be reported in that case. Otherwise, this should have been come earlier. Now, the problem is okay, so all queries are there. Let me go to FAQs. We are small OPC dormant. This I have covered. Section 8 government, whether this rule is applicable to us. Yes, this rule is very much applicable. We are not using accounting software in company. What is on implication on us? Yes, sir. No implication on you if you are not using accounting software in the company. But if you are using any software for accounting, it would be treated as accounting software. Mind it very carefully. This is very important. Very good analogy is there that we are not using accounting software, but we are using software for the accounting. Now, if you are using software for the accounting like MS Excel, or you are using software for accounting anything else other than accounting software, then that should have edit log. That is very important. We are using multiple accounting software. If you are going with multiple accounting software, then what to do? So if you are going with multiple accounting software, that would create an ecosystem. Every accounting software should have edit log. Every accounting software should have audit trail. So हमारा फिक्स एसेट रजिस्टर किसी और सॉफ्टवेयर पे मेंटेन हो रहा है, सेल्स किसी और सॉफ्टवेयर पे मेंटेन हो रही है, पर्सनल अकाउंटिंग जो हमारी हो रही है वो किसी और सॉफ्टवेयर पे है. वॉट एवर सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग, जो भी यूज कर रहे हैं आप सॉफ्टवेयर, उसका इम्प्लीकेशन तो आएगा ही, ऑडिट ट्रेल उस पर लगेगी ही. तो दैट वुड ऑलवेज बी देयर, वो वहां रहेगी. देयर इज नो पॉइंट इन दैट. देन कम्स, yes, we have outsourced some accounting portions. This is something very interesting. कुछ ऐसे क्लाइंट्स हो सकते हैं जो अपनी अकाउंटिंग को आउटसोर्स कर रहे हैं. If there are certain accountants, certain accounting functions which are outsourced, like सैलरी की अकाउंटिंग आउटसोर्स कर दी, वेजेस की अकाउंटिंग आउटसोर्स हो गई, समटाइम्स सेल्स आउटसोर्स कर दी, मार्केटिंग आउटसोर्स कर दिया. तो कुछ अगर आउटसोर्स है तो क्या उन पर भी ऑडिट ट्रेल लगेगी? बिल्कुल लगेगी. बिल्कुल ऑडिट ट्रेल लगेगी ही उन पर भी. दैट इज इम्पोर्टेंट.
Hello, there was some technical fault. Yeah. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Audible. So, if we have outsourced something, some accounting portions we have outsourced, in that case, that particular person must have audit trail. That particular person must have all these features. Now, important is how could we ensure that he is having such features? हम कैसे इंश्योर करेंगे यार कि जिसके आउटसोर्स है? अब आप बताइए, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं एक प्राइवेट लिमिटेड, और उस एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने वाई प्राइवेट लिमिटेड को बोल रखा है तुम हमारी अकाउंटिंग करो। अब मुझे कंपनीज एक्ट का कोई सेक्शन ये राइट नहीं देता कि मैं वाई प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में जाकर उसके अकाउंट को चेक करूं। तो नाउ द प्रॉब्लम इज, अब हम क्या करेंगे? क्या हम ये लिख दें कि कंपनी के अकाउंट्स तो सॉफ्टवेयर पे मेंटेन हो रहे हैं लेकिन वो सॉफ्टवेयर आउटसोर्स है, और आउटसोर्स सॉफ्टवेयर क्या हमने जाकर नहीं देख पाए, तो हम इस पर अभी कमेंट नहीं कर सकते कि इनकी ऑडिट ट्रेल है या नहीं। देखिए सर, एक है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 402, और 402 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो है वो बहुत क्लियरली मेंशन करता है दैट ऑडिटर जिस कंपनी के अंदर ऑडिट कर रहा है, जिस एंटिटी को ऑडिट कर रहा है, अगर उसने अपने कुछ फंक्शन आउटसोर्स कर रखे हैं, तो आपको दूसरी कंपनी, जिस कंपनी में आपने आउटसोर्स कर रखे हैं, उस कंपनी से कहना होगा कि आपके सिस्टम ऑडिटर से हमको टाइप 2 रिपोर्ट निकाल के दो। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिपोर्ट्स अंडर SA 402। वी रिक्वायर टाइप 2 रिपोर्ट, जिसके अंदर वो प्रॉपरली मेंशन करके देगा कि इन हमने हमने इनका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चेक किया है, तो जो रिपोर्टिंग हम चाहते हैं हम उस सिस्टम ऑडिटर से लेंगे। अब वो सिस्टम ऑडिटर भी हो सकता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है जिसने डीसा किया है, क्योंकि इतना बड़ा टेक्निकल मैटर नहीं है कि कोई एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट चाहिएगा उसकी रिपोर्ट देने के लिए, कि कोई सीसा चाहिएगा या कोई बहुत बड़ा सिस्टम ऑडिटर चाहिएगा। इवन अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन रिपोर्ट ऑन दैट। तो बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये तो बहुत क्लियर है कि बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर अकाउंट आउटसोर्स है तो या तो वो हमें लिख के दे, और नहीं लिख के देगा तो फिर मैं अपनी रिपोर्ट के अंदर रिजर्वेशन ऑफ ओपिनियन, मतलब रिजर्व कर दूंगा अपना स्टेटमेंट। एक बात बहुत क्लियरली बता दूं कि कुछ मंचों से अब हो जाता है, कई बार हमारा भी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कई बार बोलते बोलते, तो कुछ मंचों से हो चुका है ये, तो एक परसेप्शन आ गया कि अगर ये चीज नहीं है तो क्वालिफाई कर दो। नहीं, रिपोर्ट क्वालिफाई तो करना ही नहीं है भाई, ये तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट थोड़ी क्वालिफाई होता है। अरे किसी ने ऑडिट ट्रेल मेंटेन नहीं की तो आप रिपोर्ट थोड़ी क्वालिफाई करोगे कि क्या क्वालिफाई करेंगे? क्या मैंने ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं लेनी उसकी, अगर एडिट लॉग मेंटेन नहीं है, अगर ऑडिट ट्रेल मेंटेन नहीं है? ऐसा कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मिस स्टेटमेंट हो गया इस पर्टिकुलर एडिट लॉग या ऑडिट ट्रेल को मेंटेन नहीं करने के कारण? भाई साहब, इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस है, इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस को बता दो, स्टेटमेंट दे दो। क्वालिफाई करने की क्या जरूरत है? रिपोर्ट थोड़ी क्वालिफाई हो रही है वहां। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। अब ऐसी स्थिति में जब आउटसोर्स कर दिया, सामने वाले का भी ऑडिट का हमारे पास कोई वो ओपिनियन नहीं आया, क्या लिखूंगा मैं? ये लिखूंगा कि दिस कंपनी इज यूजिंग trail or not, because no evidence has been made available by management relating to that। अपना स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट चला गया, हमारा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट वहां चला गया, बात खत्म। इसको क्वालिफिकेशन थोड़ी बोलते हैं, ये तो रिपोर्ट के अंदर ही देना है, जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट देना। पर हाँ, अगर ये चीज आप लिस्टेड एंटिटी में बोल रहे हो तो सर भी फिर वो टेबल ए जो है, वो आपकी रिपोर्ट ए जो है जिसके अंदर आप इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के गाने गा रहे हो, वहां क्या लिखोगे?
अगर आप यहाँ लिख रहे हो कि ये नहीं दिया गया है ना, अब दैट इज अ सीरियस लैप्स इन इंटरनल कंट्रोल। इफ ऑडिट ट्रेल हैज नॉट बीन एस्टेब्लिश की है या नहीं है, तो फिर वहां भी डिस्क्लेम करना पड़ेगा, मतलब वहां भी अपने को रिजर्व करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, समथिंग, अच्छा, अब मान लीजिए सामने वाले ने हमको अवेलेबल ही नहीं करवाया, वो बोलता था नहीं, सामने वाले के सिस्टम ऑडिटर मेरे को कुछ भी नहीं दे रहा सर, मैं क्या करूं, मैंने उससे मांग लिया, उसका सिस्टम ऑडिटर मेरे को कुछ भी नहीं दे रहा है, ही इज नॉट प्रोवाइडिंग मी सिंगल डॉक्यूमेंट। ठीक है भैया, अगर वो नहीं दे रहा है तो मेरा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट आएगा, पहली बात। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक लेटर इशू कर रहा हूं अंडर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 250 regarding weakness in your internal control. We are unable to establish whether your internal control is appropriate or not. I am communicating it because of essay 250 and essay 265. Essay 265 says communicate the significant matter to management and those charged with governance. Mind it very carefully. You have to communicate it to management and those charged with governance with the whole picture that what potential disadvantages of non-maintaining the audit trail and what non-compliance of section 128 is imposing over you because not maintaining audit trail. If they are not maintaining the audit trail, it will be your fault also under non-compliance with laws and regulations. So 250 का communication होगा, 265 का communication होगा, 260 का communication होगा, 3 स्टैंडर्ड का communication होगा मैनेजमेंट इन दो स्टैंडर्ड गवर्नेंस के साथ। इसके बाद इससे भी बड़ा communication होगा, that would be in case of listed company I'm talking about, and that would be under SS 701. This becomes a key audit matter. The you are communicating with the management that audit trail we are not sure that audit trail has been maintained or not, and we have not got any certificate from that other company that the audit trail is being maintained or not. There are 4 standards on auditing which need to be taken compliant by the auditor. So it is something beyond their responsibility. It is our responsibility more that something is not done. Now, if suppose we are auditing a company which is a listed company, उन्होंने अड़ीबाजी में बोल दिया हमको तो नहीं करना मेंटेन। सर, अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ मेंटेन नहीं किया, लिस्टेड क्या कोई भी कंपनी ले लो, तो मेरी ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा? सर, मेरी मेन रिपोर्ट के अंदर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 की जो मेरी मेन रिपोर्ट है, जिसमें मैं लिखता हूं कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 128, मैं वहां लिख नहीं पाऊंगा कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड एट सेक्शन 128। दूसरा, वो लिखते हैं that whether proper internal control, जो कुछ कंपनीज पे लगता है, छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को बाहर किया है, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है अप्रोप्रिएट। मैं नहीं लिख पाऊंगा कि इंटरनल कंट्रोल ओवर प्रॉपर रिपोर्टिंग। एक और चीज है, एनी एडवर्स फंक्शनिंग यू फाउंड इन द कंपनी, तो सर ये एडवर्स फंक्शनिंग है कि ऑडिट ट्रेल मेंटेन नहीं हो रही, नॉन कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन तो है ही, और ये एक एडवर्स फंक्शनिंग भी है। ये 3 पॉइंट तो मुझे मेन रिपोर्ट में जो है देना पड़ेंगे। आई एम नॉट सेइंग क्वालिफाई करना पड़ेगा, आई एम सेइंग देना पड़ेंगे। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इज रिक्वायर्ड। नाउ कुछ लोग कह रहे हैं, अरे बड़े अतरंगी सजेशन आते हैं सर एक काम करेंगे, ऑडिट लॉग जब हमको एडिट करना होगा, ऑडिट लॉग ऑफ कर देंगे, एडिट लॉग ऑफ कर देंगे, जब हमको एडिट करना होगा, एडिट करने के बाद वापस ऑन कर लेंगे। मैंने कहा भाई साहब, ये मोटर का स्विच थोड़ी है, जब आपको ऑन करना तब आपने ऑन कर लिया, जब आपको ऑफ करना तब आपने ऑफ कर लिया। ये जितनी बार ऑन ऑफ होगा उतनी बार पूरा रिकॉर्ड करेगा, किधर से ऑन हुआ, किधर से ऑफ हुआ, किसने ऑन किया, किसने ऑन किया, कब ऑन किया, कब ऑफ किया, दैट होल लॉग विल बी देयर। और अगर आपको बीइंग एन ऑडिटर एडिट लॉग के अंदर ये लिखता है कि ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हुआ है, दैट वुड बी अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर अंडर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 240।
where you need to extend your audit procedures unless and until it is not completely dispelled your doubt that the things were not so as you were anticipating. So the things are very important here to record that ये कंपनी का बर्डन तो है ही, हमारे ऊपर इसका बर्डन बहुत ज्यादा है. नाउ कुछ लोग बोल रहे हैं सर एक काम करते हैं, पहले पूरा हम टैली में बनाएंगे. आप देखिए कितना क्रांतिकारी विचार था ये. पूरा टैली में बनाने के सर, और उसका टैली का प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे ऑडिटर को कि भाई ये लो, हमने तो रिकॉर्ड मैन्युअली मेंटेन किए. आप बताइए, मतलब मैं ऑडिटर हूँ, मेरे नाम के आगे सीए लगा हुआ है, और मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है ये रिकॉर्ड जो तुमने छाप के दिए ये सॉफ्टवेयर के नहीं है, तो फिर प्रिंट आउट कैसे निकला? ऑफसेट पे छपवाने गया था क्या? मतलब तो गजब ही काम हो रहा है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं. एक और भाई बोलते हैं सर एक काम करेंगे, सिस्टम की डेट चेंज कर देंगे, टाइम चेंज कर देंगे, तो 1 साल पीछे ले जाएंगे. अब जब कंप्यूटर के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एडिट लॉग है, तो कंप्यूटर के सिस्टम में सिस्टम लॉग नहीं है. कंप्यूटर के सिस्टम का सिस्टम लॉग ही आपको बता देगा कितनी बार इसके अंदर आपने टाइम चेंज किया, कितनी बार आपने क्या चेंज किया, क्यों करना पर मुझे यही समझ में नहीं आया. वाई टू डू? अरे सर ये बहुत लफड़ा हो गया, इतना डिसिप्लिन अकाउंटिंग में आ गया. तो डिसिप्लिन अकाउंटिंग में तो बहुत पहले से था भाई साहब, कंप्यूटर में आके सब गड़बड़ किया था. मुझे तो मतलब सब लोग सीनियर यहाँ बैठे, जो हम लोग आर्टिकलशिप में जाते थे, तो हमारी आर्टिकलशिप में तो भयंकर डिसिप्लिन अकाउंटिंग होती थी. हमारे तो बॉस ही हमसे बोलते थे कि पहले फोन लगाओ उसको कि तूने कैश बुक इंक आउट की हो तो ऑडिट करने आया, और कैश बुक इंक आउट नहीं हो तो नहीं आया. वेरी सिंपल. दूसरी बात, हमारे बॉस जब हमको भेजते थे तो बोलते थे कि पहले जाके जितनी कैश बुक उसको देखना, जरा कैश बुक लेजर जर्नल सब में जहां जहां 4-4 लाइन 5-5 लाइन खाली दिखे वहां अपनी पूरी हरी टिक ग्रीन पेन से घुमा देना, पेन से लिख देना, काट देना, साला बाद में एंट्री नहीं डाल देगा, और सारे इंक्ड आउट बैलेंसेस हो उसके बाद ही ऑडिट शुरू करना. तो सब ये तो डिसिप्लिन अकाउंटिंग. वहां पे कहाँ एडिट लॉग होता था? वहां तो किसी भी कोई भी दिन एंट्री घुसानी हो तो मतलब पूरा कैश बुक ही चेंज करनी पड़ती थी. और कितना मजा आता था साहब, वो भी एक दौर था. उसमें भी लोग बाग जो है अफलातून काम किया करते थे. मुझे याद है मैं एक बार इनकम टैक्स ऑफिस गया था किसी काम से आर्टिकलशिप में ही, और मुझे मेरे बॉस ने कहा था कि जाओ असीम ये डेट बढ़वा के आ जाओ. तो मैं डेट बढ़वाने के लिए गया था. तो अब डेट बढ़वाने के लिए जब गया तो प्यून ने मेरे को बाहर रोक दिया, बोले रुको सर अंदर अभी बहुत गर्म माहौल चलता है, आप अंदर जाओ ही बात. अभी मैंने कहा क्यों क्या हुआ? वो तो कोई अंदर है? हाँ ठीक है. मैं बाहर खड़ा होकर वेट कर रहा था. साहब मैं बाहर खड़ा हूँ, पर्दे के नीचे से एक लेजर बाहर आया, फिर उस पर्दे के नीचे से सर्राती हुई कैश बुक बाहर आई, सब बाहर आया. और असिस्टिंग ऑफिसर वॉज वेरी फ्यूरियस. बोले तुम लोग बेवकूफ बनाते हो, नई बुक लिख के लाते हो, पुरानी बुक हटा देते हो. तो वो बोला सर मैंने नई बुक कहाँ लिखी, आप कैसे बोल सकते हो नई बुक लिखी? वो बोलता है ये जो लेजर प्रिंट हुआ है ये लेजर प्रिंट हुआ है 1999 में, और तू मेरे को 1994 की बुक 1999 के लेजर में लिख के बता रहा है, मेरे को नहीं समझ में आता क्या? जब होती थी तब भी इस टाइप के काम होते थे और वो पकड़े जाते थे. तो थिंग्स आर वेरी डिसिप्लिन. अब तो और ज्यादा, अब ये कंप्यूटर आ गया तो इसके बाद तो डिसिप्लिन खत्म हो गया था. कभी भी कोई भी एंट्री लॉग में चली जाती थी. अब वो वापस लेके आ गए, हमको वापस तकलीफ हो रही कि यार अब ये बड़ा दिक्कत है. तो दे हैव मेड इट. नाउ इम्पोर्टेंट इज कि अब अगला क्वेश्चन आता है कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ रिकॉर्ड मैन्युअली और कुछ सॉफ्टवेयर पे. आप मेमोरेंडा अकाउंट्स जो भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं आप मैन्युअली अकाउंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन उनको आपसे बैच प्रोसेस तो करोगे ही. तो जब जिस सॉफ्टवेयर पे आप उसको प्रोसेस कर रहे हो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस should have audit trail, that should have audited log, some on Excel and some on software.
रिकॉर्डिंग अगर एक्सेल पे सिर्फ मेमोरेंडा बनाने के लिए हो रही है तो बात अलग है, लेकिन रेगुलर अकाउंटिंग हो रही है तो एक्सेल का कोई मतलब नहीं है। एक्सेल में एडिट लॉग हो नहीं सकता। लेट्स हैव अ सॉफ्टवेयर व्हिच हैज एडिट लॉग एंड ऑडिट ट्रेल। It is applicable from 1/4/2023, but we have not yet implemented. So sorry, default शुरू हो चुका है। जितनी जल्दी हो जाए बेटर होगा क्लाइंट के लिए। Whether receiving cash sales on Google Pay, Paytm, recording them in Excel will be treated as using accounting software. Sir, our guidance note clearly says that you are using Google Pay, you are using Paytm, you are using anything, and if you are getting it recorded from the those in Excel and then you are exporting that Excel to accounting software, then it should have an audit edit log. नहीं है, then we have to report factually that it does not have edit log, it does not have an audit trail, some portions of accounting which does not have. And not having edit trail and audit log does not mean there is a fraud. Now, we are using ERP. हो जितने भी लोग इस सेमिनार में मौजूद हैं और जिनके भी क्लाइंट ईआरपी यूज करते हैं, उन लोगों के लिए कान खोल देने वाली एक सूचना, और ये अपने क्लाइंट तक जरूर पहुंचाएं आज शाम तक। मैं जिस क्षेत्र में ये सेमिनार ले रहा हूं वो जयपुर है, और मध्य प्रदेश से कोई बहुत डिफरेंट नहीं। कॉस्ट कटिंग में थोड़ा ज्यादा ही होगा। तो वहां पर ईआरपी जब प्रोवाइड किया जाता है तो ईआरपी के पर लॉगिन की जो फीस होती है दैट इज अराउंड 50,000 पर लॉगिन। अब ये लोग क्या करते हैं, ईआरपी लेते हैं, एक ही लॉगिन लेते हैं और एक ही लॉगिन में मल्टी यूजर बन जाते हैं। अब भाई साहब, एक ही लॉगिन में अगर ये मल्टी यूजर बन गए तो इनकी एडिट लॉग कैसी होगी? अकाउंटिंग भी वही कर रहे हैं, एडिट भी वही कर रहे हैं, अकाउंटिंग भी वही कर रहे हैं, डिलीशन भी वही कर रहे हैं, एडिट भी वही कर रहे हैं, मतलब इनके पास दूसरे यूजर का तो नाम ही नहीं आना है। तो इनकी ऑडिट ट्रेल में एक ही नाम दिखता रहेगा। दैट विल पॉइज अ क्वेश्चन ओवर देम दैट व्हाट काइंड ऑफ इंटरनल कंट्रोल यू हैव यूज्ड, हाउ डिड यू हैव developed your internal control in various integrated software. So, और हर एम्प्लॉय जिसको आपने ऑथोराइज कर रखा है पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन लिमिट के लिए, तो उसके ऑथोराइजेशन कैसे हो रहे हैं? अब उन ऑथोराइजेशन का लॉग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि एक बार एक यूजर लॉगिन के अंदर में आपने कुछ भी क्रिएट किया तो दैट वुड वेदर कवर्ड इन ऑडिट लॉग, एडिट लॉग और नॉट। पता चला वो नीचे कुछ कवर ही नहीं हो रहा है, एक ही बंदा कवर हो रहा है। सो ये एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी जो है वो सामने आ रही है फॉर ईआरपी सॉफ्टवेयर। और 50,000 रुपीज पर यूजर खर्च करना, बट फिर भी कम से कम 2-3 यूजर तो आपको लेने ही पड़ेंगे जिसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव राइट, एडिटिंग राइट और बाकी राइट को अलग अलग करके इंटरनल कंट्रोल डिमॉन्स्ट्रेट कर सके हमारा क्लाइंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर। नाउ समटाइम्स हैपन, सर हम तो फॉरेन कंपनी की इंडियन सब्सिडरी। सर आप फॉरेन कंपनी इंडियन सब्सिडरी हो तो डेफिनेटली आप फॉरेन कंपनी तो हो ही गए, फॉरेन कंपनी के ऊपर ये क्लॉज लग रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि साहब हमारे ऊपर ये क्लॉज तो लग रहा है लेकिन फॉरेन कंट्री में एडिट लॉग और ऑडिट ट्रेल का कोई कंसेप्ट नहीं है, और हम जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसके अंदर कोई एडिट लॉग का और ऑडिट ट्रेल का कंसेप्ट नहीं। और हमने होल्डिंग कंपनी से बोला कि हमको ये लगा के दो, उन्होंने साफ मना कर दिया कि यू आर नॉट दैट मच मटेरियल सब्सिडरी जिसके लिए हम एक अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना। तो ठीक है, अगर वो कंपनी खर्चा ही नहीं करना चाहती तुम्हारी होल्डिंग कंपनी और तुमको सॉफ्टवेयर नहीं देना चाहती तो ठीक है, फिर bear with our statement in the report that you are not maintaining the edit log and ready for the consequences of section 128 non-compliance over the foreign company। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो रिपोर्ट करना है, हम तो रिपोर्ट करेंगे, हमें रिपोर्ट करेंगे। दैट इज देयर। द सेम थिंग हैपेंस इन द फॉरेन ब्रांचेस आल्सो।
फॉरेन ब्रांचेस में एडिट लॉग मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉरेन कंट्री में नहीं है, बट फॉरेन ब्रांच जो डेटा एक्सपोर्ट होकर इंडिया में आएगा वहां तो फिर सारी चीजें मेंटेन करना जरूरी। बुक्स ऑफ अकाउंट विच आर मेंटेन बाय द कंपनी, दे नीड टू रिक्वायर टू हैव दैट, वो तो रखना ही पड़ेगा। नाउ branches if not maintaining the accounting software, we have to state the fact that these branches are not maintaining the accounting software, वो भी देना पड़ेगा। तो अब बात आ रही है कि मान लो सब्सिडरीज में भी ऑडिट ट्रेल है और होल्डिंग में भी ऑडिट ट्रेल है, तो whether this reporting under section 143 is applicable to auditor of the holding company also? Yes sir, it is applicable to auditor of the holding company also, though it is not, Caro is not applicable to holding company auditor, but it is applicable to holding company's auditor also. होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर को सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटर की रिपोर्ट को पढ़ के अपनी रिपोर्ट में इंकॉर्पोरेट करना, इतना सा काम करना है। और सब्सिडरी के ऑडिटर ने अगर बोल दिया है कि वहां ऑडिट ट्रेल मेंटेन हो रही है तो हो रही है, रिलाय ऑन द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कुछ गलत है, तो यू ऑलवेज हैव राइट अंडर स्टैंडर्ड ऑर्डर 600 वेयर यू कैन विजिट दी सब्सिडरी, यू कैन विजिट दी branches also and get it done कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, but sufficient and appropriate audit evidence are needed because what we are reporting, let me come to that. What we have to report, see what we have to report. Whether the company in respect of financial year commencing on or after 1st April, which Bhupenji had recently issued one very relevant question that they are saying 1st April 2022. So does whether the report which we are issuing from after 1/4/2023 should it have that? तो अभी तो रिपोर्ट का ये हाल है कि एक प्रतिष्ठित कंपनी की रिपोर्ट में कैम लगना ही रह गया, तो इतनी जल्दी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने की कि कैम लगना ही रह गया। अब हम में से कोई गलती कर देता तो बड़ी गलती हो जाती, गलती नहीं हो जाती गुनाह हो जाता, बाकी तो ठीक है। Now whether the company in respect of financial year commencing on or after 1st April 2022 has used the accounting software for maintaining its books of accounts, okay, which has a feature of recording audit trail, edit log facility. Bhupen bhai, I was trying to getting a meaning from here that they are saying here that in respect of financial year commencing on or after 1st April 2022 has used the accounting software for maintaining its books of account when it was not required. Why one should maintain it? So that's why we have come out with this particular thing. We should start it from 23 rather than 22. So we will start it from 23, not from 22. Now, so a feature of recording audit trail or edit log. See what I have to report. पहला रिपोर्ट मेरे को देना है अ फीचर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑडिट ट्रेल और एडिट लॉग फैसिलिटी। दूसरा मुझे देना है कि सेम हैज बीन ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर। तीसरा मुझे देना है फॉर ऑल फॉर ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द सॉफ्टवेयर एंड द ऑडिट ट्रेल फीचर हैज नॉट बीन टेम्पर्ड विद एंड द ऑडिट ट्रेल हैज बीन प्रिजर्व्ड बाय द कंपनी as per statutory requirement. Now very simple. If you go to 128, section 128, they are saying you should maintain an accounting software. They are also saying, no, they are saying if you are maintaining books on accounting software, they should as per the rule. Rule says that accounting software, whatever you are using, must have audit trail. Okay. Then that rule further says that daily backup should be maintained for such books of account and audit trail. Now, daily backup of books of accounts and audit trail shall be maintained on a server which is physically located in India.
एंड इन एओसी हमारा जो एनुअल रिटर्न होता है उसके अंदर हमको डिटेल भी देना होती है कि किस सर्वर पे कौन सी सर्विस प्रोवाइडर के हैं ये पर्टिकुलर चीज जो है मेंटेन हो रही है। अब ये ऑडिट ट्रेल और एडिट लॉग ये दोनों भी मेंटेन करना पड़ेंगे, इनका भी बैकअप लेना होगा और इनके बैकअप को भी रखना पड़ेगा। अनुराग भाई आप पूछ रहे हैं सम ऑफ द स्मॉल कंपनीज आर मेंटेनिंग अकाउंट्स बाय पार्ट टाइम अकाउंटेंट। कोई बात नहीं ना, वीकली मंथली बेसिस पे करो। मैंने कहा रेगुलर अकाउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनल अकाउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ये रेगुलर अकाउंटिंग में दिक्कत है। और इंटरवल अकाउंटिंग बैच अकाउंटिंग एक पर्टिकुलर बैच के रूप में कर रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत कहाँ है जब रेगुलरली इरेगुलर अकाउंटिंग। नाउ now what we have to mention, पहला ऑडिट ट्रेल मेंटेन्ड है, ऑडिट ट्रेल का बैकअप मेंटेन्ड है। ऑडिट ट्रेल हैज नॉट बीन टेम्पर्ड विद, मतलब ऑडिट ट्रेल जो है वो टेम्पर नहीं हुई है, साल में ऑन ऑफ नहीं हुई है। ओके, और हुई है तो बताएंगे। जितने ट्रांजेक्शन सॉफ्टवेयर में रिकॉर्डेड है उन सबके ऊपर ऑडिट ट्रेल और ऑडिट लॉग फैसिलिटी के साथ अवेलेबल है। See this. They have given illustrative list, and that illustrative list they have provided in the guidance note that how should you report on that. So I'm just coming on report. इससे पहले कोई भी और डाउट हो तो I will love to answer first. Satyendra bhai, I'll come to that, how to ensure that audit trail has not been tempered. I'll come to that. How to get certificate from part-time accountants? आप अकाउंट आउटसोर्स की बात कर रहे हो, चलो अकाउंट आउटसोर्स में एक बात और बोल दूं जो बहुत छोटे और मुफस्सल एरिया, जयपुर में मुझे समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन छोटे एरियाज में जिस तरीके के क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा रहे हैं मुझे उनको ये बताना पड़ रहा है कि दोस्त हम ही ऑडिटर और हम ही अकाउंटेंट नहीं हो सकते। मुझे उन्हें बताना पड़ रहा है कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता है। सेक्शन 144 में बुक कीपिंग हम नहीं कर सकते, तो हम अपने ऑफिस में क्लाइंट की बुक को मेंटेन कर ही नहीं सकते, और अगर हम क्लाइंट की बुक्स अपने ऑफिस में मेंटेन कर रहे हैं तो हम उसका ऑडिट नहीं कर सकते। तो विवेक होना, अगर हम किसी क्लाइंट की बुक्स ऑफ अकाउंट अपने मेंटेन कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एडिट लॉग और ऑडिट ट्रेल की फैसिलिटी अवेलेबल हो, और हमें ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हमारे यहाँ एडिट लॉग और ऑडिट ट्रेल की फैसिलिटी अवेलेबल है जब उसको ऑडिटर हमसे मांगे। दैट इज वेरी क्लियर। अब अगली बात, एक क्वेश्चन और आया था सर, एंड में तो वो क्या करता है अपना पूरा टैली एक्सपोर्ट कर देता हूं और बोलता है कि ये टैली अपने हिसाब से कर। सर अब आप सोचिए उसका टैली मेरे यहाँ ओपन होगा, डेफिनेटली अब तो जो है टैली ओपन होगा वो एडिट लॉग और ऑडिट फीचर के साथ ही होगा। वो बाकायदा एक यूजर आईडी क्रिएट करके मेरे को देगा, फिर मैं उसके टैली में जाऊंगा। तो वो यूजर आईडी मेरे नाम पे तो हो नहीं सकता बीइंग एन ऑडिटर, बिकॉज आई कैन नॉट ऑडिट, आई कैन नॉट अकाउंट फॉर दैट। उसका अकाउंटेंट आए, उसका लैपटॉप लेके आए, उसके लैपटॉप में वो टैली खोले और जो एडजस्टमेंट उसको करना है, जो गलतियां उसकी हैं उन सारी गलतियों को वो सुधारे, उसके बाद मुझे फाइनली दे। मुझे व्यूइंग राइट चाहिए टैली में, एडिटिंग राइट्स मेरे ऑफिस में ना तो मेरे पास रहेंगे और ना ही मेरे किसी आर्टिकल के पास रहेंगे। क्यों? मैं क्यों ऑडिट ट्रेल या एडिट लॉग में आऊंगा? मैं तो ऑडिटर हूं, सेक्शन 144 लग जाएगी मेरे ऊपर, मैं कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी वैसा उसी दिन अगर मैंने आपकी अकाउंटिंग कर डाली। पॉसिबल ही नहीं है बॉस। वन हैज टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट वी our you can use my Wi-Fi but you cannot use my machine
You cannot use my staff. You cannot use my anything. Well, I am not involved in your accounting. Whatever I am saying that you need to correct, you came in my office and correcting it. I am not correcting it. You are correcting it. Very sure. That has to be this has to be established. Otherwise, the auditor will be dragged. तो क्या कर रहा है ऑडिटर? सारी अकाउंटिंग तो ये कर रहा है, तो खाली बुक कीपिंग कर रहा है, अकाउंटिंग तो सारी ऑडिटर कर रहा है. दैट इज नॉट एट ऑल टीनेबल, वो है ही नहीं. सो ऑडिट ट्रेल फीचर was disabled for one of the books of accounts or records or for accounting software. जैसे फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन नहीं हो रहा. अब मैं क्या रिपोर्ट लिखूंगा? सर मुझे क्लियर रिपोर्ट देंगे that based on our examination, company has used accounting software for maintaining its books of account, which has a feature of recording audit trail at deadlock facility, except in respect of maintaining the fixed asset record where the accounting software did not have the audit trail feature enabled throughout the year. This is the fact which we have to report. Further, audit trail facility has been operating throughout the year for all relevant transactions recorded in the software. This is how we have to report under rule number 11. Another example. Audit trail feature is not operating effectively during the reporting period. Now I have to say, in June, the audit trail was not, in April, whole audit trail was not available as the company has not made it enabled in during April, except that the audit trail feature of this software used by the company maintained payroll record did not operate throughout the year. Except that no audit trail enabled or disabled. Now this is very, very important topic to be dealt for. Is it required to have an audit trail at the transactional level, or should we also take it for the database level? Something very interesting. See, अकाउंट मास्टर के अंदर आप नए अकाउंट क्रिएट कर रहे हो. कुछ लोगों का कहना है अकाउंट मास्टर में अकाउंट क्रिएट करना और अकाउंट मास्टर में अकाउंट डिलीट करना, अकाउंट मास्टर के अंदर अकाउंट को का क्लासिफिकेशन चेंज करना. दिस इज नॉट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. आप तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन देख रहे हो, आप ये कहां देखने जा रहे हो? ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन थोड़ी है. नॉट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. बट सर ऑडिट ट्रेल के अंदर जो उन्होंने बोला, what is audit trail? Audit trail is a visible trail of evidence enabling one to trace the information contained in the statement or report back to the original input source. Audit trail are chronological record of changes that have been made to the data. They are not saying to the accounts. Any change to data, including creating new data, updating or deleting data, must be recorded. So, our opinion clearly demonstrates here that sir, whatever changes you are making in masters will definitely going to have a clear-cut impact over your accounting, and database trail is also required to be maintained. Now, very important. दिवाली पर कंपनियां बोनस देती हैं, प्रमोशन करती हैं, इंसेंटिव देती हैं, अलाउंसेस देती हैं, वो तो ठीक है. लेकिन जब जब प्रमोशन होता है, जब जब
सैलरी रिवाइज की जाती है, अकाउंट्स मास्टर के अंदर उन सबको चेंज किया जाता है। तो एचआर डिपार्टमेंट डेटाबेस में जाकर सैलरी को, वेजेस को, उनकी बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करता है। अब अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है तो दैट बेसिक स्ट्रक्चर चेंज शुड आल्सो बी कमिंग अंडर दिस एडिट लॉग फैसिलिटी। अब वो संभव नहीं है कि उन्होंने जून में जाकर मास्टर में चेंज कर दिया सैलरी स्ट्रक्चर, तो पूरे साल की सैलरी जो है वो बढ़ के आ गई, सैलरी बढ़ के आ गई, इधर प्रॉफिट कम हो गया, बोले बहुत बढ़िया, दो चार की और बढ़ाओ, दो चार की और बढ़ा दी और आ गई आउटस्टैंडिंग आ गई। दैट इज नॉट अवेलेबल नाउ। अभी डेटाबेस लेवल पे भी कोई चेंज होगा तो दैट डेटाबेस लेवल changes will also be tracked down by this particular edit law. So one has to be very careful that they are not only coming for this, they are coming for edit log also. Yeah, I'll share this presentation with everyone, no problem. Now, they are coming for accounting software is maintained by third party. An auditor is unable to assess the audit trail feature can be disabled during the reporting period, which I have explained you. No qualification. I'm again saying you, no qualification is required. It's a statement of fact. So based on our examination, the company has used an accounting software ABC, which is operated by third-party software service provider. आजकल SaaS पे भी काम होता है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है, उन्होंने सिर्फ आपको एक लॉगिन दे रखा है. So based on our examination of the company has used the accounting software ABC, which is operated by the third-party software service provider for maintaining its books of account. In absence of, see this लिखा है यहाँ पे टाइप रिपोर्ट, मुझे टाइप 2 रिपोर्ट चाहिए. टाइप 2 रिपोर्ट जो होती है 402 में, वो ये बोलती है कि इंटरनल कंट्रोल डिजाइन्ड है, इंटरनल कंट्रोल इम्प्लीमेंटेड है और टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा करके हमने ये चेक किया है कि इंटरनल कंट्रोल वाकई में सही. So that called take the type of control report. So that is called type 2 report. We are unable to comment whether audit trail feature of the said software was enabled and operated throughout the year and all relevant transactions recorded in the software or whether they were any instance of audit trail feature has been tampered with. हम कुछ बोल ही नहीं सकते, हमने सीधा सीधा सा अपना ओपिनियन यहाँ पर दे दिया. अगला उन्होंने दिया accounting software is maintained by third party. An auditor is unable to assess whether the audit trail feature can be disabled. Next. Sometimes it happens that there is a migration from one software to other happened during the year or higher version of software installed and the auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence. Okay. If the company has migrated, so we have to report it that company has migrated from this software to that software during the year and it is in the process of establishing necessary controls and documentation regarding the audit trail. Consequently, we are unable to comment on audit trail feature as stayed in the software. So basically, जो takeaways हमारे हैं वो ये हैं that सारी कंपनीज पे सॉफ्टवेयर, सारी कंपनीज को ऑडिट ट्रेल एप्लीकेबल है, ऑडिट ट्रेल 1 for 2023 से एप्लीकेबल है, ऑडिटर को रिपोर्ट 1 for 2024 के बाद से करना पड़ेगा. ऑडिटर को स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट देना है, ऑडिटर को क्वालिफिकेशन देने की जरूरत तब तक नहीं पड़ेगी जब तक बिल्कुल ही एडवर्स बुक्स ऑफ अकाउंट ना रख दी गई. ऑडिटर को स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट देना है, आउटसोर्स अगर अकाउंट हुए हैं तो 402 के अंदर जाना है. ऑडिट ट्रेल अगर बार बार टेम्पर्ड हुई, एक क्वेश्चन आया था कि सर ऑडिट ट्रेल टेम्पर हुई है तो आप देखोगे क्या. अब जरा अपन ऑडिट ट्रेल का ऑडिट कैसे करेंगे जरा उस पर. सबसे पहले तो ऑडिट ट्रेल ऑन करनी, ऑडिट ट्रेल खोलना होगा. ऑडिट ट्रेल खोलने के बाद
facts are to be reported by in the main audit report, or one more question, very apt question asked from Rahul Agrawal ji. Fact are to be reported in main report or under other matter. Main report sir, other matter nahi, other regulatory requirement जो है ना, क्या we have main audit report, then we have legal requirement, proper books of accounts have been maintained, accounting standard followed, वो वाला जो अपना है 143 वाला, उसी में नीचे है, that would be in the part of main report, कारों से just पहले. Now one question has been asked, and that question was how to check this. So sir, audit trail खोलेंगे, audit trail इनॉर्मस होगी, मतलब डेली के ट्रांजेक्शन और फिर उनके एडिट्स, मतलब आप सोच रहे हैं कि ये उतना इजी नहीं है. थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शन जो है उस ऑडिट ट्रेल में होंगे. अब हम क्या करेंगे, हम मंथली सैंपल ले लेते हैं. मंथली सैंपल क्यों बोल रहा हूं मैं, मंथली सैंपल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमसे बोला गया कि थ्रू आउट द ईयर ऑडिट ट्रेल मेंटेन की गई है. तो भाई मुझे, अब मैं मेरी ऑडिट रिपोर्ट पे आ जाऊं के बाद मैं आपको बताता हूं. मेरी ऑडिट रिपोर्ट में बोला है कि फीचर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल फैसिलिटी हैज बीन ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर फॉर ऑल द ट्रांजेक्शंस. नाउ इसके लिए मुझे ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेंगे, और इसके लिए ऑडिट एविडेंस लेने के लिए मैं ऑडिट ट्रेल देखूंगा. ऑडिट ट्रेल देखने के बाद हर महीने की ऑडिट ट्रेल में से थोड़ा थोड़ा सैंपल लूंगा. सैंपल साइज क्या रखूंगा, वो स्टैंडर्ड ऑन 530 डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस हम निकालेंगे. अब मान लीजिए हमने 50-50 ट्रांजेक्शन बीच बीच में से ले लिए, अलग अलग वीक के ट्रांजेक्शन ले लिए एक ही पर्टिकुलर मंथ में, और हमने उनको देखा कि भाई इसमें ऑडिट ट्रेल ऑन और ऑफ तो नहीं हुई. हर मंथ के अंदर हमने सैंपल बेस पे देख लिया कि कोई ऑन ऑफ नहीं हुई. तो पहली बात तो ये कि ऑडिट ट्रेल ऑन और ऑफ नहीं हुई, ऑडिट ट्रेल कंप्लीटली चलती रही. एक्सेप्शनल रिपोर्ट भी जनरेट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है. डेटा एनालिटिक्स भी हो जाता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज गिविंग एवरीथिंग. एंड माइंड इट वेरी केयरफुली, टैली कोई आज नहीं लेके आया है. अगर आपसे कोई ये बोलता है कि हमारे पास टैली आया और टैली ने बोला कि साहब आप ये, टैली के पास 2004 से है, टैली के पास ऑडिट ट्रेल 2004 से है, टैली की एक्सेप्शनल रिपोर्ट 2004 से अवेलेबल है. और 2004 से जो इंटरनल ऑडिट फर्म्स हैं जयपुर की भी, मैं आई कैन श्योरली बेट ऑन देम कि वो लोग बिना ऑडिट ट्रेल सॉफ्टवेयर टैली का यूज किए इंटरनल ऑडिट कर ही रहे थे. दे वर ऑल डूइंग दैट. तो वो तो होता ही ना, इंटरनल ऑडिट में तो बेस्ट चीज होती है ऑडिट ट्रेल निकालो, एक्सेप्शनल रिपोर्ट निकालो, एक्सेप्शनल रिपोर्ट और निकालो और इंटरनल ऑडिट करना. तो ये तो सबसे अवेलेबल है. इनेबल डिसेबल कर दिया जाता था इसको, वो प्रॉब्लम. अब ये परमानेंटली इनेबल रहेंगे, ये डिसेबल नहीं होगा. डिसेबल होगी तो ऑडिटर की रिपोर्ट में आ जाएगी डिसेबल होगी. तो थ्रू आउट द ईयर में मेरे को पूरे ट्रांजेक्शन देखना पड़ेंगे, थोड़े थोड़े सैंपल लेना पड़ेंगे, सैंपल को बाहर निकालना पड़ेगा, एंड देन सैंपल में से देखकर मैं एविडेंस लूंगा क्या मेंटेन. दूसरा, ऑन और ऑफ नहीं हुई है साल भर, मतलब इट हैज नॉट बीन टेम्पर्ड विद, दैट इज देयर. देन मुझे लेना है कि इसकी रिकॉर्डिंग का क्या है, कितने दिन प्रिजर्व करूं मैं ऑडिट ट्रेल को. सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर 8 साल रखनी है तो ऑडिट ट्रेल भी 8 साल तक मेंटेन रखनी पड़ेगी. इट हैज टू बी मेंटेन फॉर 8 years. नाउ वेरी कॉस्टली अफेयर इट इज. इफ इट इज अ big company, how much memory these audit trail will going to capture in the system, you can imagine it. I asked Tally guy who came in Indore. I said यार तुम्हारा टैली जितनी मेमोरी हमारी हार्ड डिस्क में लेता है, ये ऑडिट ट्रेल के बाद क्या होगा. बोले सर 4 times. मैंने कहा मतलब 1 साल की 4 times. बोले यस सर. तो मैंने कहा 8 साल की, सर 24 times. मतलब मैं अपनी हार्ड डिस्क को 24 times बड़ा कर लूं अगर मेरे को 8 साल तक के रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, सर करना ही पड़ेगा. So it has a cost. It's a big cost which is on the company. So we need to maintain it also. So that is there. Now, this is all from my side right now.
Now, whether the audit trail log is required to be audited, yes sir. Audit trail log हम audit करेंगे तभी तो जाकर हम ये सारी बातें कर पाएंगे अनुराग भाई, और कैसे करेंगे? That is not there. I request members, you may ask more question. वैसे तो हमने काफी तो कर ही लिए questions. If you have any more questions, we can come. Yeah, Tally is not giving providing consolidated report of changes as of now, but they will give definitely. Tally के बारे में बात करता हूँ, अभी मेरी बात चल रही है उन लोगों से. I'm giving them suggestion. They are also coming. They were also not that much ready for that. They will implement it. ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है जो वो implement ना कर पाए. हो जाएगी. That will be implemented. Thank you, Bhupen bhai. Getting appreciation from person like you is always give us a boost. So Yes, thank Rohit you bhai. so Any much. questions? Yes, sir. Thank you so much, sir, for your wonderful deliberation. और I think queries हो गई होगी सॉल्व. बहुत लोगों ने queries करी. I think उनके जवाब उनको मिल गए होंगे. और अगर फिर भी कोई रहता है तो वो उनको भेज सकते हैं. बिल्कुल, एनी टाइम. सर एक्चुअली मेरे को तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि मैं जैसे आपके ऑडिट की क्लासेस लेता था पहले, तो बिल्कुल वैसा ही सामने बैठ के आपको एंजॉय कर रहा था सर. Thank you. और सर, and now I request CA Kamal Jain, Deputy Convener of Study Circle, for the vote of thanks. Kamal ji. Thank you, Rohit bhai. Thank you, Aseem sir, all the participants. Thank you, Aseem sir, for your wonderful deliberation. And it is eye-opening deliberation for all of us, because now that the changes which comes to us, it's very, very important for all the members who are doing audit works and all, because this audit trail is very, very must, and we have to report on it. So it is very keen topic for all of us. And thank you so much, Aseem sir. You are deliberately, properly हम लोगों को जो point to point किस तरीके से हम चीजों को ध्यान रखना है, आपने उन बारीकियों को भी सब लोगों से के साथ शेयर किया. तो I hope from all of us, thank you so much for the wonderful deliberation, and thank you all the participants for this deliberation. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Rohit ji, over to you. Yes, sir. Thank you, Kamal ji. सर आपको पीपीटी शेयर कर देंगे. ये काफी लोगों के मैसेज देख रहा हूँ मैं पीपीटी के लिए, तो we'll share with you. हम ग्रुप पे शेयर कर देंगे. रोहित जी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ. फॉर ऑल ऑफ अस, ये जो हम लोग का सेशन है, हम लोग कल नॉर्थ वेस्ट के यूट्यूब चैनल के ऊपर भी एक बार पोस्ट कर देंगे. तो वो रेफरेंस यू कैन टेक दिस सेशन फ्रॉम यूट्यूब चैनल ऑफ नॉर्थ वेस्ट एज वेल. ओके रोहित जी. ओके, सो आई थिंक अब किसी की क्वेरी है नहीं, आई थिंक सर. So let's wind up, sir. Yeah. Thank you, sir. We are signing off for today. Yeah. Thank you so much, Aseem sir. Thank you so much. Thank you so much, sir.